Hi, so today is March 14th, 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. First is about COVID-19 cases hit 82. All the major events are now postponed. Then second is about rain hail storm flatten wheat crop in Punjab. Hailstorm, western disturbances flatten wheat crop in Punjab. Then third is about coronavirus का strain isolated by ICMR. Then fourth is about people over profit. This is editorial section. Then fifth is about dominion over territory. This is a talk on lieutenant governor versus chief minister of a state. Then sixth is about the ambit and the limit of diaspora diplomacy. This is lead article in editorial page. Then seventh is about the temples of critical thinking and debate. This is an excellent article. Do read this article on your own once. Highly recommended. Then eighth is about Prime Minister calls for SAARC video conference. SAARC का अभी video conference का call हुआ है. These all countries belong to SAARC group. Then ninth is about विवाद से विश्वास बिल. इसको राज्यसभा से अभी नोट मिला है. This is about direct tax. 10th is about government seeks city level plan. City level plans for clean air. Then 11th है Trump set to declare national emergency. Invoke Stafford Act in USA. Then 12th है Europe now epicenter of pandemic. Then 13th is about bulls quarantine bear. Bull versus bear. Then 14th is about the scheme for Yes Bank gets cabinet node. 15th है blue chip gain color. And 16th है rupee rebound after RBI intervene. 74.5 से अभी recovery हो रही है रुपी का. Then 17th is about Irani Cup और 18th है sports events are on hold. So today we are going to read about all these 18 topics and more in next 20 to 25 minutes. So let us start. First is about this COVID-19 cases. इसका नंबर अब 82 हो गया है. Second patient dies. See, ये सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीजेज है. अभी जो पहली प्रायोरिटी है हमारी वो है कंटेनमेंट करना, इसको फैलने से रोकना है. लॉकडाउन हो गया है जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट पैनिक. वी नीड टू मेक एग्रेसिव मेजर्स. हमारे जो मेजर्स हैं वो एग्रेसिव होने चाहिए इन कंटेनमेंट ऑफ दिस डिसीज़. कैन ऑल्सो रिवर्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन. नाउ मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ही इज़ गोइंग टू कॉल सार्क स्ट्रैटेजी. सार्क का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा विच वी आर गोइंग टू रीड इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इसमें सारे सार्क कंट्रीज एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने का ट्राई करेंगे बिकॉज ये जो डिसीजेज होती है ना, दे डू नॉट नो द बाउंड्रीज. ये स्प्रेड पूरे साउथ एशिया में फैल सकती है और बिकॉज साउथ एशिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड एरिया, सो दैट इज़ वाई अगर इसका आउटब्रेक होता है एशिया में तो इट वुड बी वेरी सीरियस थिंग. देन मीनवाइल जो IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है. वनडे इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होना था, ये भी अब कैंसिल हो गया है. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. सी, दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स स्पोर्ट्स इवेंट टिल फर्दर ऑर्डर. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. दिस इज़ पेज नंबर 2. And this is page number 3. Again, see, cinema halls turn away, audience institute suspend classes in capital. Then this is again very important. This is sharing inflammatory messages on WhatsApp can land you in jail for 3 years. It is our duty that we do not encourage any such type of inflammatory messages. This is on us. If any individual shares or forward messages or videos on WhatsApp or any social media platform, be it Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, which are inflammatory in nature or incite communal tension, then the guilty will have to serve jail term up to 3 years. It is time that we act like a responsible citizen of India. Then this is COVID-19. Again, school colleges closed in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. Now this is, look at this news. ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हो रहा है, पर हमने ये देखा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो हेल्प करते हैं इन राबी क्रॉप्स. ये विंटर रेंज होती है जो स्टार्ट होती है इधर वेस्टर्न साइक्लोन्स, देन ये मेडिटेरेनियन से वाटर पिक करते हैं, देन इंडिया आते आते ये यहाँ पे वाटर का रेनफॉल होता है इन द मंथ ऑफ विंटर्स में होता है यूजुअली फरवरी मार्च में. नाउ विंड्स जो होती है ना वो कल्प्रेट है. विंड से क्या होता है, ये जब बहुत तेज़ी से बहती है तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है वीट की ये फ्लैटन हो जाती है, ऐसे फ्लैटन हो जाती है और क्रॉप डिस्ट्रक्शन होता है. सो अभी वीट क्रॉप है राबी. राबी क्या होती है,
वीट क्रॉप इज़ राबी क्रॉप। देन रेन्स जो है ना ये बेनिफिशियल होती है, बट जो विंड्स होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, राबी, खरीफ एंड जायद। देन हेल स्टॉर्म क्या होता है? हेल स्टॉर्म को बोलते हैं ओले। जब सॉलिड प्रेसिपिटेशन होता है, वाटर पानी की बजाय ओलों में कन्वर्ट, बर्फ में बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, फिर वो सॉलिड फॉर्म हैवी होते हैं तो वो नीचे फॉल हो जाते हैं। सो दिस इज सॉलिड प्रेसिपिटेशन। आइस पैलेट्स बनते हैं, इसका जोग्राफिकल फिनोमिनन होता है अप ड्राफ्ट, एलिवेशन, फ्रीजिंग जोन्स होते हैं, विंड शेयर नहीं होना चाहिए। सो उन केसेस में ऐसे करके ये हेल स्टॉर्म फॉर्म होता है। सो रेनफॉल, hail, hailstorm, flatten wheat crop in Punjab. Now this is again novel coronavirus COVID general advisory for public. Follow if you have any of this symptom, then you should immediately contact medical practitioners. These are certain do's and these are certain don'ts. Then this is page number 9. Coronavirus strain isolated, says ICMR. See, फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स एक्सपीडाइटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। जब अब इसका स्ट्रेन वायरस का हम कर लेते हैं ना, सी कोविड जो थी ना, कोविड-19 डिसीज़ का नाम है, ये नोवल कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन इन्होंने वायरस का अलग कर लिया है। तो जब ये स्ट्रेन अलग हो जाता है तो हम एक्सपीडाइट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, वैक्सीन, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स। तो मीन कल हमने एक आर्टिकल भी देखा था, विद इन 2 ईयर्स हमारे पास दिस नोवल कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन होगा। सो ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्ट्रेन जो है ये 99.99% सिमिलर है वुहान स्ट्रेन के। सी जो ये वायरस है ना ये भी म्यूटेट कर रहा है, मीन्स इट्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। तो इसके वेरियस स्ट्रेन पॉसिबल है स्लाइड डिफरेंस में। तो जो हमने अभी ICMR ने सेपरेट किया है दैट इज़ 99.99% सिमिलर विद वुहान के स्ट्रेन से। सो लैब्स अभी हमारे यहाँ अंडर यूटिलाइज्ड है, हम मोर नंबर ऑफ केसेस सैम्पल्स भी हम हैंडल कर सकते हैं इफ़ इट रिक्वायर्स। सोशल डिस्टेंसिंग की टू कंटेनिंग कोविड-19। देन दिस इज़ पीपल ओवर प्रॉफिट। सी यहाँ जो बात है वो बात है IPL का। IPL कमर्शियल एक्टिविटी है, तो कमर्शियल इंटरेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड एफर्ट्स टू डील विद द पैंडेमिक। दिस इज़ ओके, स्पोर्ट्स इज़ इंपॉर्टेंट, दिस एक्टिविटी हैज़ ऑल द राइट टू बी डन। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इससे ये कोरोना वायरस का वाइड आउटबर्स्ट हो गया, आउटब्रेक हो गया, तो वो फिर गलत होगा। सो दैट इज़ वाई पीपल ओवर प्रॉफिट यहाँ पे डिस्कस किया है। देन फिफ्थ इज़ अबाउट डोमिनियन ओवर टेरिटरी। सी अक्सर एक गवर्नर होता है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिजीम में चीफ मिनिस्टर होता है। स्टेट में यूटीज़ में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पुडुचेरी दिल्ली में, और एक चीफ मिनिस्टर है। बिकॉज पुडुचेरी और दिल्ली में क्या है, वहाँ पे लोकसभा है, विधानसभा है वहाँ पे। सो यहाँ पुडुचेरी का एग्जाम्पल लिया है। अक्सर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में डे टू डे एवरीडे वर्क में टसल हो रहा है। सो कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और जो चीफ मिनिस्टर है वो इलेक्टेड रिजीम है। तो रेसिडुअल पावर का जो था फॉर्मूला वो दैट नीड टू बी एड्रेस। तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना दैट शुड बी डन बाय द चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ट्रस्ट है अमंग हाई डिग्निटरीज, दे आर वेरी हाई डिग्निटरीज, दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिस चीफ मिनिस्टर एज वेल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड सिंक्रोनाइजेशन रहे इनके वर्क में। देन एक्नॉलेज द स्टेटस ऑफ NCT इज सुई जेनरस। इसका मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड स्पेशल केस। जो NCT है ना इट्स वन ऑफ इट्स काइंड केस, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। और NCR अलग होता है, हमने देखा था ना डिफरेंस कपल ऑफ वीडियोस बैक, NCR वर्सेस NCT। सो दिस इज NCT। अभी चुनाव कहाँ पे हुए थे, NCT में हुए थे। और जो गुड़गांव, नोएडा, ये सब, फरीदाबाद, ये किस में आता है, ये आता है NCR में। So constitutional functionaries should avoid daily clashes, aid and advise every matter. This should be dealt in proper administrative values, not mean every matter. Then ये जो आर्टिकल है ये है द एम्बिट एंड द लिमिट ऑफ डायस्पोरा डिप्लोमेसी। डायस्पोरा मतलब जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं, सपोज से USA में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, तो वो इंडियन डायस्पोरा हो गए। ये NRI भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि इंडियन अभी कुछ इवेंट्स हुए, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू USA के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, ब्रिटेन गए। तो हमने इंडियन डायस्पोरा को भी थोड़ा पॉलिटिकल एंगल माइलेज लेने का इन इवेंट्स ने ट्राई किया है। सो आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल चॉइस ऑफ इंडियन माइग्रेंट अब्रॉड थ्रू अ मोर रियलिस्टिक लेंस हमें ज़रूरी है। सी NRI होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, इनकी सिटीजनशिप इंडियन है। और OCI क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनकी सिटीजनशिप फॉरेन की होती है। सो दे हैव गॉट देयर रूट इन इंडिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लर लाइंस हो रही हैं, पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अवर डायस्पोरा डिप्लोमेसी। सो
This is next article, Temples of Critical Thinking and Debate. This is an excellent article. Do read this article on your own once. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. टू बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें लिखा है जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं अगर उनको वर्ल्ड में बेस्ट बनना है तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम एक्सेसिव इंटरफेरेंस एंड पॉलिटिसाइजेशन. ये बहुत एसेंशियल है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में इंटरफेयर करना और उसको एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन होना हमें स्टॉप करना पड़ेगा. ये एक रिपोर्ट आई है सब्जेक्ट वाइज, दिस इज़ क्वारल साइमंड्स, ये एक रिपोर्ट निकाला है सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग दी है. तो टॉप 100 में रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन जैसे अलग होते हैं ना, ह्यूमैनिटी, साइंस एट्सेट्रा, उसमें इंडियन स्कूल्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, विच इज़ अ गुड थिंग. IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, दे आर डूइंग वेल. नाउ ऑटोनॉमी जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑटोनॉमी से फ्रीडम आती है. Primacy to matters of the mind. This is important. Intellectual ideas and solutions to problems and avoiding becoming hostage to dogmatic thoughts. जो प्लूरलिस्टिक होता है मतलब वेराइटी होता है, राइट लेफ्ट सेंटर सबकी जगह है इन यूनिवर्सिटीज़ में. प्रो या फिर एंटी व्यू हो, सो डिफरेंस ऑन ओपिनियन जो होता है वो इट इज़ गुड, दैट इज़ ऑल राइट. कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक मैटर में दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट. प्रोफेसर्स जो होते हैं इनको हायर करना चाहिए आउटस्टैंडिंग स्कॉलरली एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स का. नॉलेज एज एन एंड इन इटसेल्फ. सी, जो समिट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंडेवर है ये हमें यूनिवर्सिटी को बनाना है. मीन्स यूनिवर्सिटी में दे शुड बी द टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी. इंसेंटिवाइज करना है पब्लिकेशन को एंड साइटेशन को. जो रिसर्च वर्क होता है वो अक्सर हम इग्नोर करते हैं, तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटीज़. रिसर्च इन एन अनफॉरगिविंगली रिगरस वेज. क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेटिंग, राइटिंग एबिलिटी, दीज शुड बी डन. इंटरडिसिप्लिनरी लेंसेज, चैलेंजेस, प्रोफेसर्स, इनको क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए. स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, आस्क क्वेश्चंस, आस्क एज मेनी एज questions as you can, because if you ask a question your doubt would get clear. So always encourage this habit of asking question. जो भी क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन कभी गलत या अच्छा नहीं होता है. क्वेश्चन जब भी आता है जस्ट शूट इट. नाउ इंटरैक्टिव पेडागॉगी होनी चाहिए. प्रोड्यूस चैम्पियन ग्रेजुएट्स. कटिंग एज स्किल्स आनी चाहिए, स्किल्स इन जॉब मार्केट. जो अलुमनाई होती है वो गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, इस सब में हमें एलुमनाई का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है. तो वी शुड इंक्लूड एलुमनाई. एलुमनाई मतलब पास आउट्स होते हैं. सपोज दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से पास हो गए, आप डिफरेंट फील्ड्स में आगे बढ़ गए लाइफ में. अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसको इन एलुमनाई को भी रोप इन करना चाहिए इन द ग्रोथ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. नाउ सुपर स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स. जो चाइना है, चाइना ने बहुत ज़्यादा मैसिव पुश दिया था अभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में. सी, चाइना के पास पैसों की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, खूब सारी फंडिंग है, तो उसने खूब सारे पैसे लगाए अपनी यूनिवर्सिटी में. एंड चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग सो वेल इन पास्ट सम टाइम. नाउ इंडिया जो है, हमारी स्थिति ऐसी रही है, हमारे पास पैसों की कमी है तो हम कैश स्ट्रैप्ड हैं. पॉलिटिसाइजेशन, आइडियोलॉजिकल बायस, नेपोटिज्म, ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, इसको स्ट्रिक्टली रोकना चाहिए. कैंपस को फ्री करने की ज़रूरत है. सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, फ्रॉग एंड वेल एटीट्यूड. ये होता है ना कि हम ही बहुत सुपर है, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, खुद ही को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. फ्रॉग एंड वेल एटीट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं, कुएं का मेढक होना. आप कुएं में ही खुद को बहुत अच्छा मान रहे हो, आप बाहर जाके देख नहीं रहे हो, कंपटीशन नहीं ले रहे हो. सो ये जो दोनों मेंटेलिटी होती है ना, ये आपको ग्रोथ में बहुत हैम्पर करती है. 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस अभी आए थे, इनको काफ़ी ऑटोनॉमी देने की बात थी. डिजिटल लर्निंग अभी एक नया चल रहा है, सो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी एम्फेसाइज करना ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फलेस लीडरशिप से ही ये चैलेंजेस हम एड्रेस कर पाएंगे. और जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रोथ की तरफ ले जाना और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ ले जाना आज के टाइम पे बहुत एसेंशियल हो गया है. नाउ दिस इज़ बैक टू स्कूल. जिटर्स इन वैली. स्कूल में वैली में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं. जिटर्स इन वैली. देन प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन कोविड. दिस इज़ सार्क. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, काठमांडू, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड दिस इज़ श्रीलंका. 1985 दिसंबर 8. ये जो सार्क है ना, इसमें अक्सर टेंशन होते हैं इंडिया और पाकिस्तान में. तो इस टेंशन के कारण क्या होता है, ये पूरा सार्क का जो मीटिंग होती है वो हो नहीं पाती. फॉर एग्जांपल लास्ट समिट लेवल मीट हुआ था सिंस 2014 के बाद हुआ ही नहीं है. नाउ 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना. और तो दिस सार्क जो है SAARC, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे अभी जो कोविड वायरस आ रहा है ये बाउंड्री को नहीं जानता है. ये चाइना से इनिशिएट हुआ, इंडिया में भी आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
इट कैन क्रॉस द इंटरनेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री। दैट इज़ वाई ये सारे कंट्रीज़ को अब एक साथ आके इस कोविड-19 से लड़ने की ज़रूरत है, और उसी के लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। सार्क में ये प्रॉब्लम हुआ था कि टाइमली प्रपोजल है, शिफ्टेड फोकस हो गया था। मीनवाइल हमारा एक बिम्स्टेक बॉडी आ गई है, BBIN बॉडी है, और इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। तो फॉर टाइम बीइंग दिस सार्क से हमारा जो फोकस है वो इन पे शिफ्ट हो गया था। बट वी शुड नॉट इग्नोर दिस सार्क, ये काफ़ी पुरानी बॉडी है और इसका अपना अलग सिग्निफिकेंस है। नाउ दिस इज राज्यसभा नोट फॉर विवाद से विश्वास बिल। सी, ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है, राज्यसभा से अभी से नोट मिला है। तो दिस इज सेकेंड चांस टू टैक्स पेयर टू सेटल देयर ड्यूज विदाउट एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी टिल March 31। मीन्स आपने टैक्स इवेजन किया तो विवाद हो गया। अब विवाद होने से आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपने जितना टैक्स इवेजन किया बस वो पे कर दो, आपको पेनल्टी, आपको और किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, फाइन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो बिल है, जो आपका टैक्स ड्यू था, उसको आप पे कर दो, और ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। 10% पेनल्टी है वुड बी चार्ज अगर आपने 31 मार्च तक ये नहीं किया तो 31 मार्च तक यू शुड क्लियर योर ड्यूज़। अब इसका जो लार्ज स्केल इवेजन था उसको स्टॉप करने के लिए इसकी अपर कैप लगा दी है 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा आपको नहीं रहेगा, विद इन 5 करोड़ होना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसमें 75% टैक्स देना पड़ेगा अगर अनडिस्क्लोज टैक्स आपने इनकम बैंक में डिपॉजिट किया था इन कैश। सो दिस इज़ विवाद से विश्वास स्कीम। 31 मार्च इज़ द डेडलाइन। नाउ यहाँ पे दिस इज़ पेज नंबर 12 और ये है पेज नंबर 13। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सीक्स सिटी लेवल प्लान्स फॉर क्लीन एयर। सी, आजकल ना माइक्रो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिटी का अपना एक अलग चैलेंजेस होता है, अपनी प्रॉब्लम्स होती है। सो सिटी लेवल प्लान ज़रूरी है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। पॉल्यूशन के इश्यूज होते हैं, डेल्ट विद दैट लोकल लेवल पे डील करना ज़रूरी है। हर सिटी का डिफरेंट पॉल्यूटेंट सोर्स होता है। सी, लखनऊ में अलग है, भोपाल में अलग है, दिल्ली में अलग है, आप साउथ में जाओगे तो कंट्रीज़ कोयम्बटूर में अलग होगा। सो हर सिटी का पॉल्यूटेंट जो सोर्स होता है दैट सोर्स इज़ डिफरेंट। गंगा जो होती है इसमें सीवेज की प्रॉब्लम होती है, मतलब सारा जो अनट्रीटेड वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का डोमेस्टिक वेस्ट, वो सारा इस रिवर में मिल रहा है और ये रिवर बहुत पॉल्यूट होती जा रही है। तो हमने बनाया था कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, CETP। इसमें पहले ये प्रोविज़न थे कि ये बनाया किसी और ने है और ऑपरेट कोई और कर रहा है, इससे सिनर्जी नहीं आ रही थी। सो दैट इज़ वाई बिल्ड और ऑपरेट अब सेम पर्सन करेगा 10 साल के लिए। ये नया इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। जो CPCP होता है वो इंस्पेक्शन और कॉम्प्लायंस को ध्यान देगा। नाउ दिस इज़ 10th, दिस इज़ 11th। सी, वायरस स्प्रेड अक्रॉस ग्लोब, टोल क्रॉसेस 5000, बॉर्डर क्लोजेज हो गई हैं, लॉकडाउन है, लेटिन अमेरिका कट ऑफ, दिस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ मीनवाइल इसी के ड्यूरेशन में ट्रंप सेट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, इन्वोक किया है स्टैफोर्ड एक्ट। स्टैफोर्ड एक्ट क्या होता है? ये एक्ट एम्पावर करता है फेडरल इमरजेंसी और करीब 40 बिलियन का फंड अलोकेट हो गया है फॉर डिज़ास्टर रिलीफ। सो मैनेजमेंट एजेंसी, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को ये नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, जैसे कि कोई फ्लड्स आ गए या फिर जैसे वायरस का भी हो गया, कोविड थ्रेट आ गए, तो इसमें इन्हें एक्स्ट्रा पैकेजेस मिल जाते हैं और इस एक्ट का नाम है स्टैफोर्ड एक्ट। तो अभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है इन USA। सेम थिंग इज़ इन यूरोप। यूरोप में एपी सेंटर ऑफ पेंडेमिक बन गया है, मीन सबसे ज़्यादा केसेस यहीं पे आ रहे हैं, मोर रिपोर्टेड इन डेथ केसेस आर हियर। देन सिविलियन अमंग 6 डेड इन US स्ट्राइक इन इराक। देन दिस इज़ बुल्स क्वारंटाइन बियर। क्वारंटाइन मतलब स्टॉप करना, ऐसे रोक के रख देना, किसको? बियर को। सी, बुल मतलब दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ लगा रहा है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। बियर मतलब स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैच करके नीचे ला रहा है, दिस इज़ बियर। सो दिस इज़ बुल, दिस इज़ बियर। तो अभी फ्राइडे में काफ़ी फॉल हुआ था, उससे पहले भी फॉल हुआ था। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 की थ्रेट के कारण अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल रिसेशन जैसी चीज़ें हो रही है। सो मार्केट काफ़ी क्रैश हो गया था, बट द गुड थिंग इज़ नेक्स्ट डे से थोड़ा रिकवरी हुआ है। LIC लेड डोमेस्टिक बाइंग स्टेम्स कार्नेज, तो इसने स्टेम किया है कार्नेज को। फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी बिंज सेल कर रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं FPIs इक्विटी मार्केट में। सी, दिस इज़ बुल increasing, this is bear, this is declining. So COVID-19 global economic slowdown, crude oil भी meanwhile प्राइस फॉल हो रही है, बट उसका रीज़न दूसरा है। डिमांड तो कम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन, बट जो सप्लाई है उसका रीज़न ये है कि आपस में लड़ रहे हैं ओपेक, रशिया, और मीनवाइल शेल गैस USA का भी एक एंगल है। देन दिस इज स्कीम फॉर यस बैंक गेट कैबिनेट नोट। सी,
यस बैंक प्राइवेट बैंक है, अभी फाइनेंशियल ट्रबल हो गई थी यहाँ पे, तो उसके कारण क्या किया आरबीआई ने, तुरंत इसे मॉरेटोरियम में डाल दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए विड्रॉवल और लिक्विडिटी पे। बोर्ड उसका चेंज हो गया, आरबीआई ने अपना पर्सन वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। 49% स्टेक है जो रिवाइवल प्लान है उसमें एसबीआई ने लिए हैं। पुट लेंडर्स केम टू रेस्क्यू, जो प्राइवेट लेंडर्स हैं यहाँ पे लिखा है फोर प्राइवेट लेंडर्स जॉइन यस बैंक रेस्क्यू लाइक आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, तो ये भी इस बैंक को रेस्क्यू करने में आ रहे हैं। आई वॉज रीडिंग इन दिस रिपोर्ट इन डिटेल, ये जो पूरा प्लान है ना ये बहुत प्रैक्टिकल है, मेटिकुलस प्लान बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, इज दिस एंटायर रिवाइवल ऑफ यस बैंक। देन दिस इज 15th, दिस इज 16th, रुपी रिबाउंड्स आफ्टर आरबीआई इंटरवीन। सी रुपी भी फॉल हो गया था 74.50, बट अब इसकी रिकवरी हो रही है अगेंस्ट अ डॉलर। तो आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है। आरबीआई इंडिया में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है और उसका एक रोल ये भी है कि वो इस लिक्विडिटी रुपी इन सबको मॉनिटर एंड रेगुलेट करे। तो जब अननेसेसरी फॉल हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, तो आरबीआई तुरंत इंटरवीन कर देता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, रिस्क अवर्जन, हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग देयर लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो रहा है। सो दैट इज़ वाई कल हमने देखा था ना डॉलर स्वैप विंडो आ रही है, डॉलर स्वैप विंडो, इसमें क्या होगा $2 बिलियन आरबीआई प्राइवेट बैंक से बोलेगा आप हमें दे दो, कुछ साल बाद वो अगेन हाई रेट पे आपको वापस मिल जाएंगे, तो इससे जो बैंक्स है वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। 6 मंथ का डॉलर स्वैप विंडो, मार्केट वॉलेटिलिटी मीनवाइल फाइट करने का ये एक मेजर होता है। फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं इंडिया के वो काफ़ी अच्छे हैं थैंकफुली, $487.23 बिलियन इज़ द प्रेजेंट नंबर। देन दिस इज़ डेडलाइन टू सबमिट ऑल एयर इंडिया बिड्स इन April 30। हमने देखा था ना एयर इंडिया में स्वीटन कर दी है डील को, फॉरेन पोर्ट एफडीआई भी 100% हो गई है एनआरआई ऑटोमेटिक रूट से, सो इसका भी डील अब एक्सटेंड कर दिया है April 30 में। नाउ दिस इज़ पेज नंबर, दिस इज़ शोकेज रॉ रफ एंड रियल, दिस इज़ शोकेज, दिस इज़ F1 इन डिसरे मेलबर्न। देन दिस इज़ ईरानी कप। ईरानी कप क्या होता है, ये स्पोर्ट्स का होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट। 1959-60 में जब 25 साल हो गए थे रणजी ट्रॉफी को, तो ये इन्होंने एक इवेंट चालू किया, इसमें रणजी ट्रॉफी का जो चैम्पियन है और रेस्ट ऑफ इंडिया है ये दोनों का मैच होता है। ZR ईरानी थे, इनके नाम पे ये ईरानी कप होता है। तो इनक्यूम्बेंट रणजी ट्रॉफी चैंपियन वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये टूर्नामेंट होता है। देन सी यहाँ पे भी इवेंट्स अफेक्टेड इन इंडिया बाय कोरोना वायरस, एथलेटिक्स की इवेंट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, मोटर स्पोर्ट्स, शूटिंग, टेनिस, ऑल द इवेंट्स जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है वायरस का स्प्रेड, उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। स्पोर्ट्स इवेंट्स आर ऑन होल्ड। सो दिस इज़ देन this is Sindhu falls to Okura, then this is ATK Chennai Iron and we are not here by accident. So this is sports section and this is today's newspaper. आज हमने पढ़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स होल्ड, वी रेड अबाउट ईरानी कप। ईरानी कप क्या होता है, 25 साल हो गए जब रणजी ट्रॉफी को, तो जो चैंपियन है रणजी ट्रॉफी का और रेस्ट ऑफ इंडिया, इनके बीच में फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है। इंडिया में जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। रुपी रिबाउंड्स आफ्टर आरबीआई इंटरवीन्स, ब्लू चिप कंपनी, वी मिस दिस। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, ब्लू चिप कंपनी मतलब होता है ब्लू वाइट बॉय है ना, मतलब बहुत अच्छा है। तो ब्लू चिप वो कंपनीज होती हैं जो रिलायबल शेयर्स होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी। ये लेस सिक्योर देन गिल्टेज, गिल्टेज तो टॉप मोस्ट होती हैं गवर्नमेंट, बट जो इसके जस्ट नीचे आती है वो आती है ब्लू चिप कंपनी। तो दे ऑल्सो गेन कलर, दे आर ऑल्सो नाउ डूइंग बेटर। देन स्कीम फॉर यस बैंक गेट्स कैबिनेट नोड, बुल्स क्वारंटाइन बियर, बुल मीन्स भाग रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है, बियर मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। यूरोप एंड यूएसए, देन गवर्नमेंट सीक्स सिटी लेवल प्लान फॉर क्लीन एयर, दिस इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया। देन दिस इज़ विवाद, विवाद खत्म करो और विश्वास लेके आओ, राज्यसभा नोट डायरेक्ट टैक्स, ये है सार्क कंट्रीज, दिस ग्रुप इज़ स्टिल रेलेवेंट। देन दिस इज़ एन एक्सेलेंट आर्टिकल, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे बोलने के लिए और ऐसे में लिखने के लिए। टेम्पल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेट, the ambit and the limit of diaspora diplomacy. Then this is dominion over territory, people over profit. This is coronavirus strains, isolated ICMR, rain hailstorm flatten wheat crop in Punjab. Then this is COVID-19 cases hit 82. इवेंट्स जो हैं वो भी पोस्टपोन हो रही है, ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर 14th of March 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.